Okay, so let's start with this. Now, in today's lecture, we are going to see the fourth and the last type of problem in the topic Laplace transform. So, we are seeing the first module of your syllabus where our topic is Laplace transform. In this, till now, we have seen three types of problems. Which are those three types of problems? The first type of problem is where we find the Laplace transform of a given function using definition. Okay, definition. Laplace transform of f of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. So this definition we use to find the Laplace transform. Then the second type of problem was where we use basic formulas to find the Laplace transform of a given function and linearity property. So when I say basic formulas, I'm talking about trigonometric formulas, sine of a plus b formula, sine of a minus b formula, cos of a plus b, cos of a minus b, 2 sine a sine b, 2 sine a cos b, 2 cos A cos B, these formulas, A plus B raised to N, expansion formulas, sine hyperbolic comes into the picture, so we use the definition. So all these basic trigonometric formulas, basic algebraic formulas, so these basic formulas, so when I say basic formulas, I am referring to the formulas which we have studied before this semester, whatever formulas we have come across. So using just the basic formulas and along with that we use the linearity property. So linearity property says if you have addition or subtraction, then you can separate the Laplace transform. If you have a constant multiplied with a function, the constant can be taken outside the Laplace transform. Okay. So along with these basic formulas, we use our this thing linearity property and find the Laplace transform. That was problem type 2. Okay. Now in problem type 3, we saw properties. We saw how to find Laplace transform using properties. Now, which are the properties we were talking about? We saw first shifting property. This helps us to find the Laplace transform when we have a function multiplied by an exponential function, e raised to at or e raised to minus at. Next, we saw multiplication by t property. So, where this we use when we have a function multiplied by t. So not only t raised to some power. So we use the property that many times. Next we saw division by t property. So when a function is divided by t, we can use this particular property. Next we saw Laplace transform of derivative property. We have to find the Laplace transform of a derivative of a function. Then we use this property. Next we saw Laplace transform of integral property. Okay, so integral 0 to t f of u du. So how to find Laplace transform of this function? This we have seen. And then finally we saw two more properties. One was change of scale property and the other one was second shifting theorem or second shifting property. So using these properties, how to find the Laplace transform? That is problem type 3 using the properties of Laplace transform. Okay. Now today we are going to see problem type 4. Now in problem type 4, we are not asked to find the Laplace transform of any function. Okay, we are asked to evaluate an integral. So this is an application type of problem. This is application of Laplace transform for what? To evaluate a real integral. We would be given an integral, a real integral, and we'll be finding the value. That is, we'll be evaluating this real integral using the concept of Laplace transform. So this is what we are going to see in today's lecture. Okay. So before beginning with this, what we are going to do is we are going to just recall what we did in the previous lecture. All right. So now in the previous lecture, we had seen the last two properties that we spoke about of Laplace transform. Which were those two properties? The first property we saw was change of scale property. This property is used to find Laplace transform of f of at. So here you can see that the scaling is happening in on the t domain or the t axis. The variable t is multiplied by a. So to find Laplace transform of f of at, now here in our syllabus we would be
required to find such a Laplace transform where we would be given Laplace transform of f of t. Okay, we need not necessarily find Laplace transform of f of t. We would be given Laplace transform of f of t. So this Laplace transform is known to us. And suppose the Laplace transform of f of t is phi of s. Okay, then this change of scale property says to find Laplace transform of f of a t, we need to multiply t by a on the left hand side. Okay, we multiply t by a on the left hand side. So what happens on the right hand side? There are two things that happens on the right hand side. When you multiply t by a here on the right hand side, you multiply s by 1 upon a and the entire right hand side by 1 upon a. Okay, so when you multiply s by 1 upon a, you get s by a. When you multiply the entire thing by 1 upon a, entire right hand side by 1 upon a, you get 1 upon a into phi of s upon a. So this is the statement of change of scale property. Okay, so this is the first property we saw. The next property we saw is second shifting property, or it is also called as second shifting theorem. Okay, so this property is used to find Laplace transform of g of t. What is this g of t over here? G of t is a piecewise continuous function. Okay, we have also seen the graph of this function. Now, till now we have seen that for a piecewise continuous function, as of now we have only one method to find the Laplace transform, and that is using definition. Okay, if you have a piecewise continuous function like this, then we can use only the definition to find out the Laplace transform. But right now in second shifting theorem, we have yet another procedure to find out the Laplace transform of a piecewise continuous function. But the second shifting theorem cannot be used for any piecewise continuous function. It can be used only for a specific, a very particular type of piecewise continuous function. What is that? Now, this is the algebraic expression of the function, but then it becomes very easy to understand things when we see the graphical representation. Okay, so I'll be explaining using the graphical representation. Second shifting theorem can be used when over the interval 0 to infinity, your function is defined in two pieces or two parts. Okay, there is a point a somewhere in between. Okay, so which divides the interval into two parts. Now over the first part, compulsorily the function has to be defined as 0. Okay, so this is the first part. And over the second part, you can have some function defined over t minus a. Here the point is a. So you should have a function of t minus a. Okay. So if you have such a function given, you can use second shifting theorem. Okay. And how do we use it? So here what we do first is we look at this function f of t minus a. We ignore this minus a. Okay, we make this, ये minus a को हम गायब कर देते हैं. Okay, तो क्या बचता है f of t. तो Laplace transform of f of t find out करते हैं. Suppose the answer is phi of s, then Laplace transform of this entire function g of t will be phi of s into e raised to minus as, the same minus a जो हमने गायब किया था, तो वो यहाँ पर कोइफिशिएंट में आता है, s के कोइफिशिएंट में इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. So Laplace transform of g of t is e raised to minus as into phi of s. Okay, so previous session, that is on Friday's session, right? So this is what we had seen. ये दो प्रॉपर्टी हमने देखा था. ओके, एंड देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस. ओके, अभी हम आज के टॉपिक पर आते हैं. आज के टॉपिक में हमें इवेलुएट करना है रियल इंटीग्रल को. वी नीड टू इवेलुएट इन रियल इंटीग्रल. किस तरह का इंटीग्रल होगा? सी, इस तरह का इंटीग्रल होगा आपको क्वेश्चन में. यू विल बी आस्क्ड टू इवेलुएट इन इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus at, where a is some constant, into some function of t will be there dt. ओके, तो ये ऐसा आपको इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए बोलेंगे. अगर आपने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है या किसी फंक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. नोवेयर इन द क्वेश्चन द वर्ड लप्लास ट्रांसफॉर्म इज मेंशन्ड. ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ रियल इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए बोला है.
तो ये रियल इंटीग्रल हम इवेलुएट करेंगे with the help of Laplace transform. Okay, so let us see why and how. तो इस तरह का जब इंटीग्रल होगा, किस तरह का, जहां पर लिमिट्स होगा 0 टू इंफिनिटी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और उसके अलावा एक फंक्शन ऑफ t होगा, इस इंटीग्रल को हम इवेलुएट कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके. ओके, तो ये चीजें कंपलसरी है. लिमिट होना चाहिए 0 टू इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, एंड अदर देन दैट यू शुड हैव सम अदर फंक्शन f ऑफ t. ओके, तो इस तरह का अगर इंटीग्रल है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके इसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात आई तो हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक में हमने 3 तरह के इंटीग्रल देखे हैं. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी देखा है, इंटीग्रल s टू इंफिनिटी देखा है और इंटीग्रल 0 टू t देखा है. ओके, लेट्स क्विकली रिकॉल ये कौन से इंटीग्रल कब देखे हैं. इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी हमने देखा है डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में. ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी जो था ये 0 टू इंफिनिटी टी डोमेन का इंटीग्रल था और ये डेफिनेशन में था. नेक्स्ट इंटीग्रल s टू इंफिनिटी, ये इंटीग्रल s डोमेन का है एंड वी केम अक्रॉस दिस इंटीग्रल इन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. लास्ट लेक्चर में मैंने इसका क्वेश्चन पूछा था एंड ऑल ऑफ यू हैड रिमेंबर्ड वेरी करेक्टली कि कौन सा इंटीग्रल हमने कब यूज किया है. सो आई एम जस्ट सेइंग इट आउट. तो ये इंटीग्रल हमने देखा था डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t अपॉन t वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी phi ऑफ s ds. ओके, देन इंटीग्रल 0 टू t हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी में. ओके, तो ये 3 इंटीग्रल हमने देखे थे. तो अगर इन तीनों के साथ आपने इस गिवन इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिमिट है 0 टू इंफिनिटी विच मैचेस विद द डेफिनेशन वाला इंटीग्रल. तो इससे पता चलता है कि हमें ये यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है. ओके, सो वी हैव टू लुक एट द इंटीग्रल एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड अहेड. तो यहाँ पर डेफिनेशन वाले इंटीग्रल के साथ ये मैच होता है. So we are going to find out this integral, evaluate this integral using the definition of Laplace transform. Okay, तो चलो देखते हैं अब definition कैसे use करेंगे. तो हमारे definition में जो एक integral है, तो let us write the definition और उस integral के साथ हम ये given integral को compare करेंगे. So comparing this with integral 0 to infinity e raised to minus st f of t. ओके, ये इंटीग्रल को हमने बोला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. तो आप इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये जो इंटीग्रल है 0 टू इंफिनिटी, इन दोनों में फर्क क्या है, सब कुछ सेम है. यहाँ पर s है और ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें s की जगह पर a है. ओके, मतलब अगर ये इंटीग्रल जहां पर s है इसको हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बोला, तो ये जो इंटीग्रल है जहां पर s के जगह पर a है, देन दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t एट, सॉरी दिस हैज टू बी s इक्वल्स टू a. सॉरी, ये एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Yeah, this has to be at s is equal to a. Okay, okay, so this is what we are discussing. तो ये जो given integral है, integral 0 to infinity e raised to minus some constant a into t f of t dt is Laplace transform of f of t at s equals to a. Okay, so ये देख के क्या पता चलता है, ये देख के ये पता चलता है कि आपको ये इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये जो फंक्शन f of t है इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. ओके, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के बाद, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें यू पुट s इक्वल टू a, क्योंकि इस इंटीग्रल में s के जगह पर a है. ओके, सो वेरी सिंपल.
तो if you want to find the value of this integral 0 to infinity e raised to minus at f of t dt, टू स्टेप प्रोसीजर है. स्टेप 1 में इन दिस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन है, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इग्नोर करो, उसके अलावा जो भी फंक्शन है, यहाँ पर एफ ऑफ टी है, तो सबसे पहले उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. ओके, तो आपने एक बार उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, देन स्टेप 2 क्या है, यहाँ पर s की जगह पे a है, तो you have to put s equals to a and that gives you the answer to this integral. ओके, तो ये अपना प्रोसीजर है. सबको प्रोसीजर समझ में आया? Have we understood this procedure? Okay. आज सब क्लियरली सुनाई दे रहा है? नो इश्यूज ना? ओके, ग्रेट, लवली. ठीक है, अब हम प्रॉब्लम देखेंगे. ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. तो वी इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus t sin 2t cos 3t dt. Again we read the question clearly. यहाँ पर हमें कोई लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने नहीं बोला है. ओके, क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो हमें ये जो इंटीग्रल दिया है, इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज कर रहे हैं. ये लप्लास ट्रांसफॉर्म को हमें लाना है, इन बिटवीन एक स्टेप में हमें लाना है. हाउ डू वी डू दैट? तो ये जो इंटीग्रल हमें इवैल्यूएट करना है, इसमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम इसको लप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं. अगर आपने कंपेयर किया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी साइन 2t साइन 3t dt को इस इंटीग्रल के साथ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt, इस इंटीग्रल को हम इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे. लिमिट्स तो सेम है. ई रेज टू माइनस टी अगर ई रेज टू माइनस एस टी के साथ कंपेयर होता है, तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में s इक्वल टू 1, करेक्ट. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंपेयर किया तो s इक्वल टू 1 मिलता है. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आपने इग्नोर किया, तो जो बचा है यहाँ पर साइन 2t cos 3t, ये कंपेयर होगा f ऑफ t के साथ. मतलब इस क्वेश्चन में अपना f ऑफ t इज साइन 2t cos 3t. ओके, ये समझ में आया? इस गिवन इंटीग्रल को ये लप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन वाले इंटीग्रल के साथ जब हमने कंपेयर किया, तो हमें दो चीजें पता चली कि इस गिवन इंटीग्रल में s का वैल्यू 1 है और f ऑफ t जो है वो sin 2t cos 3t है. तो ये अपना मेन थिंग है, ये आइडेंटिफाई करना. ओके, तो ये अभी इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है, दिस इज लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, बट अपना f ऑफ t क्या है? sin 2t cos 3t. So the value of the integral can be obtained by finding Laplace transform of sin 2t into cos 3t at s equal to 1. Okay, so this statement is very important. तो ये statement हमें लिखना है. इस स्टेटमेंट में इस गिवन इंटीग्रल को हम लप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके एक्सप्रेस कर रहे हैं. वी आर एक्सप्रेसिंग द गिवन इंटीग्रल यूजिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, तो और इसमें प्रोसीजर भी क्लियर हो जाता है कि आगे कैसे बढ़ना है. तो इसमें क्लियर है कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करो और उसका आंसर आने के बाद यू पुट s equal to 1. Okay, so this is what we have got. All right, so let's get started with the first step. तो फर्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t. अब हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखे हैं. टाइप 1 यूजिंग डेफिनेशन, टाइप 2 यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज, टाइप 3 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म तो कहीं पे स्कोप है ही नहीं. साइन 2t cos 3t देखा तो बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. कौन सा बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर साइन और कॉस है. ओके, तो इसको यहाँ पर कॉस का जो एंगल है साइन के एंगल से बड़ा है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला 2 cos a sin b इज साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. तो उसमें ये 2 की जरूरत है, सो वी आर एडजस्टिंग दिस 2 हियर एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर
2 से डिवाइड किया जिसको हमने लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बाहर निकाल दिया, सो इट कम्स आउट एज हाफ। और ये वाले टर्म को भी हमने रीअरेंज कर लिया ताकि बड़ा वाला एंगल फर्स्ट इसमें आ जाए, तो वी गेट हाफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 3t into sin 2t। Now we use this 2 cos A sin B का फॉर्मूला here, तो हमें मिलेगा हाफ Laplace transform of sin of A plus B, so that is sin of 3t plus 2t minus sin of A minus B, that is sin of 3t minus 2t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हाफ Laplace transform of sin of 3t plus 2t is 5t minus sin of 3t minus 2t is t। ओके, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इस लैप्लस ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ये जो माइनस देखा, माइनस देख के कौन याद आया? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो दिस गिव्स अस हाफ इनटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। ओके, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t है, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें पता है। ओके, सो विल यूज दिस। यहाँ पर आप देखेंगे तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस ऑल्सो वी नो। तो चलो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ मिलेगा हाफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t इज 5 upon s square plus 5 square, 5 square is 25, so we get 5 upon s square plus 25. This minus Laplace transform of sin t, this is sin 1t, तो ये मिलेगा 1 upon s square plus 1 square which is 1। ओके, तो ये हमने Laplace transform का फॉर्मूलाज भी डाल दिया। As I had said before, usually यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर हमें s का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो फाइनल आंसर इसके लिए हम सब्सटीट्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो राइट नाउ वी डोंट सिंप्लीफाई। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया वेयर वी फाउंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन f of t। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू पुट s इक्वल टू 1। okay, so we write it as at s equal to 1 what happens to this Laplace transform। okay, so this means the value of this Laplace transform after putting s equal to 1। तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं s equal to 1, तो क्या मिलेगा? हाफ 5 upon 1 square plus 25 minus 1 upon 1 square plus 1। ओके, अब ये पूरा एक्सप्रेशन आप वैसा का वैसा कैल्सी में सब्सटीट्यूट करोगे तो डायरेक्ट एक स्टेप में आपको आंसर दे देगा। ओके, तो हियर वी नीड नॉट वरी अबाउट दिस कैलकुलेशन पार्ट अलॉट, हियर आई हैव शोन इट, बट देन आप इसको डायरेक्ट पूरा का पूरा विद द ब्रैकेट इन दिस फॉर्म आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालोगे तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। एनीवे हियर लेट अस सी द कैलकुलेशन। तो ये हाफ है, 5 अपॉन 1 प्लस 25 इज 26 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम लाने का स्कोप है। यहाँ पर 26 है, ये 2 है, अगर इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर 26 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 5/26 माइनस 13/26। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा 5 माइनस 13 विच इज -8। ओके, और अब यहाँ पर एक 2 कैंसिल हो सकता है, तो ये 2 कैंसिल हुआ तो हमें मिलेगा -4 अपॉन 26, और -4 और 26 में से एक और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट -2/13। ओके, सो ये अपना डिटेल में सिंप्लीफाई करके अगर आपने ये पूरा एंटर किया होता तो वो भी आपको डायरेक्ट आपको -2/13 आंसर मिल जाएगा। तो हमने अभी क्या किया है? वी हैव फाउंड आउट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t into cos 3t at s equal to 1, and that answer we got it as -2/13। But Laplace transform of sin 2t into cos 3t at s equal to 1 is the value of the given integral, isn't it? यही हमने शुरू में establish किया था। So that means the value of this given integral is -2/13 and that is the final answer। Okay, ये प्रोसीजर समझ में आया? Okay, great।
ओके, ये प्रोसीजर बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले वेयर वी राइट द इंटीग्रल एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ समथिंग एट s इक्वल टू सम वैल्यू. तो वो s का वैल्यू और f ऑफ t वो दोनों पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद इसमें एज आई सेड 2 स्टेप है, जिसमें मेन स्टेप तो अपना लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है. तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है वही तो हमने अभी तक चैप्टर में देखा है. पिछले जो 13 लेक्चर्स है उसमें हमने वही देखा है. ओके, all right, and then the second step is of course we substitute the value of s and we do the calculation. ओके, तो अभी लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ सकता है वो मैंने इंक्लूड किया है. ओके, सो लेट अस सी दिस हियर आल्सो. ओके, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई हैव kept in mind while choosing the problems जो आपको मैंने आखिर में बताऊंगी. ठीक है, तो here the question is evaluate integral 0 to infinity t square sin 3t upon e raised to 2t dt. तो ये क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म. क्वेश्चन है इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, लेकिन जिस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है उसका लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी. और दूसरी चीज हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है लेकिन वो डिनोमिनेटर में जाके बैठा है. तो चलो इसको न्यूमरेटर में लेकर आते हैं. तो व्हेन यू ब्रिंग दिस e raised to 2t in the numerator it comes up as e raised to minus 2t. अब देखो ये इंटीग्रल का लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ कुछ फंक्शन है, मतलब इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो दैट इज व्हाई the first step is compare this integral with the integral in the definition of Laplace transform. कंपेयर करके हमें दो चीजें मिलती है. लेट्स सी, यहाँ पर लिमिट तो सेम है, कंपेयर होना ही है. इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर आपने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कंपेयर किया तो हमारा s का वैल्यू यहाँ पर क्या आता है, e raised to minus st compared with e raised to minus 2t. तो s का वैल्यू 2 आता है. ओके, अब नेक्स्ट चीज इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इग्नोर करो. यहां पर क्या बचा, टी स्क्वेर साइन 3t. यहां पर क्या बचा, f ऑफ t. मतलब इन दिस प्रॉब्लम f ऑफ t इज टी स्क्वेर साइन 3t. ओके, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, s फाइंड आउट करना और f ऑफ t फाइंड आउट करना. चलो ये पता चल गया. सो नाउ इसके साथ कंपेयर करके हमें पता चलता है कि दिस इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज Laplace transform of f of t. अपना f of t क्या है, t square sin 3t at s equal to 2. ओके, तो ये मतलब इन दिस स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए तो पहले इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो और बाद में उसमें s का वैल्यू 2 डालो. ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. तो चलो सबसे पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेर साइन 3t फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर जब हम ये टी स्क्वेर देखते हैं तो कौन याद आता है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी. कितनी बार मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, 2 बार, बिकॉज टी स्क्वेयर है सो टी इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. सो वी हैव टू यूज मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी 2 टाइम्स. ओके, ये जो साइन 3t है इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वी हैव टू स्टार्ट विद दिस फंक्शन. तो टू बिगिन विथ वी स्टार्ट विथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इज 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9. ओके, अब ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया. नाउ वी हैव टू ब्रिंग t स्क्वायर इनटू द पिक्चर. तो वील ब्रिंग 1t एट अ टाइम. तो एक t के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आपने एक t के साथ मल्टीप्लाई किया तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t विल बी, यहाँ t से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, द राइट हैंड साइड गेट डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू s एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय -1. तो ये बनेगा माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. ओके, सो ये हमने मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज किया. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई मतलब क्या करना है, ये डेरिवेटिव निकालना है. तो पहले देखते हैं ये कौन सा टाइप ऑफ डेरिवेटिव है. यहाँ पर आप देखो तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है
तो चलो ये कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो ये क्या मिलेगा, ये मिला -3 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 9। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर। 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, ये हमने देखा है, राइट। सो दिस गिव्स अस, ये -3 वैसा का वैसा रहेगा और इसका डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन द डिनोमिनेटर स्क्वेयर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है ना, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लेट अस सी, ये डेरिवेटिव हमें पता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वेयर इट इज 2s प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 इज 0। तो चलो हमें ये डेरिवेटिव पता है, तो वी विल सब्सटीट्यूट दिस। यहाँ पर एक और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, -3 इंटू -1 दिस गिव्स अस 3। सो वी गेट 3 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 9 द होल स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव आया 2s प्लस 0। यहाँ पर 2s प्लस 0 is 2s and multiplied with this 3 gives us 6s. So we get 6s upon s square plus 9 the whole square. तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 3t। तो अपना सॉल्यूशन खत्म हो गया ना, इतना बड़ा डेरिवेटिव तो कर लिया, अभी बस ना सॉल्यूशन खत्म नहीं ना, क्या करना है अभी, क्या करना है अभी, सब्सटीट्यूट कर देते हैं s इक्वल टू 2, बस हो गया डेरिवेटिव। s इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करना है। ओके, आई हैव गॉट 2 आंसर्स। कुछ लोग बोल रहे हैं और एक बार मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करो, मतलब और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं s का वैल्यू डाल दो। s का वैल्यू यहाँ पर नहीं डाल सकते बिकॉज इस इंटीग्रल में टी स्क्वायर है, अपना एफ ऑफ टी क्या था, टी स्क्वायर साइन 3t था, करेक्ट। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t लाना है पहले, अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं, करेक्ट। सो मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके, कितना भी टेम्पटेशन हो एस डाल के खत्म करो, नहीं खत्म नहीं करना, आंसर गलत होगा। वी हैव नॉट गॉट द फर्स्ट स्टेप येट। ओके, तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 3t इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर मिला है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक और t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर इनटू sin 3t। तो यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या होगा, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ दिस राइट हैंड साइड। ओके, चलो नाउ दिस डेरिवेटिव को हैंडल करते हैं। यहाँ पर ये जो 6 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, तो ये -6 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव कैसे करना है, u अपॉन v रूल। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्या फॉर्मूला था, ये डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, तो चलो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वी गेट -6 एज इट इज हियर, और ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला डाला है, क्या है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो हमने सिर्फ फॉर्मूला डाला है। तो अब फॉर्मूला डालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई है, ये डेरिवेटिव है ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और ये डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना है। ये डेरिवेटिव क्या आएगा, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ s विल बी 1। ये जो डेरिवेटिव है s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स द ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ओके, तो इन दोनों को अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा -6, दिस -6 एज इट इज, ये s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 यहाँ डाल दिया, माइनस s इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स द ब्रैकेट, मतलब 2 टाइम्स s स्क्वायर प्लस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट, चेन रूल, सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखो एक और डेरिवेटिव बच गया है, तो पहले ये डेरिवेटिव का भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद
आगे का सिंप्लीफिकेशन होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये डेरिवेटिव डालेंगे। ये डेरिवेटिव मतलब क्या करना है, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये डेरिवेटिव डालेंगे। यहाँ पर क्या डालना है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2s प्लस 9 का डेरिवेटिव है 0। ओके, यहाँ पर ये ब्रैकेट का कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो डायरेक्ट इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। तो लेट्स डू दिस। सो दिस गिव्स अस -6, यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर इंटू 1 गिव्स अस s स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर, माइनस ये s इंटू 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 को हमने वैसे ही रखा, ये डेरिवेटिव आता है 2s प्लस 0 विच इज 2s, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये डिनोमिनेटर s स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4 वैसा का वैसा रहेगा। ओके, अब और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन में अगर आपने देखा, एक एस स्क्वायर प्लस 9 ये माइनस है, यहाँ पर भी एक एस स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस 9 है, तो एक एस स्क्वायर प्लस 9 को हम कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमरेटर में। तो चलो निकालते हैं। -6 एस स्क्वायर प्लस 9 कॉमन निकाला, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में एक एस स्क्वायर प्लस 9 बचा, बराबर, माइनस ये एस स्क्वायर प्लस 9 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, s इंटू 2 इंटू 2 इंटू एस विच इज 4s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4। ओके, तो ये हमने कॉमन निकाला। क्यों कॉमन निकाला, ऐसे ही टाइम पास है ना, मजा आता है कॉमन निकालने में। क्यों कॉमन निकाला, कैंसल, एक्सेलेंट अमित। ओके, किसके साथ, ये एक एस स्क्वायर प्लस 9, वेरी गुड वेरी गुड, एस स्क्वायर प्लस 9 द होल रेज टू 4, यहाँ पे 4 एस स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाइड है, तो ये एक के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो चलो कैंसिल करते हैं। तो ये एक ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हुआ, तो हमें क्या मिलता है, -6, ये एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4s स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। ओके, अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर मिलता है -3s स्क्वायर, सो वी राइट दिस -6 हियर एज इट इज, ये 9 यहाँ वैसा का वैसा लिखा, -3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल क्यूब। ओके, तो ये हमें मिला लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 3t। आपको चाहिए ये -6 को आप अंदर ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस, फिलहाल मैंने नहीं लिया है, आई जस्ट लेफ्ट इट एज इट इज। ओके, तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। ये इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप थे। सबसे पहला था फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के अलावा जो है उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ s। so what is the value of s we are going to put, s equal to 2। so at s equal to 2 the value of this Laplace transform will be -6 into 9 minus 3 into 2 square upon 2 square plus 9 the whole cube। okay, अब अपना कैलकुलेटर इतना वंडरफुल है आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर, यू कैन एंटर दिस एंटायर एक्सप्रेशन एंड गेट द आंसर ओके इन सेकेंड्स, तो यू कैन डू दैट। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बताया है, आप डायरेक्टली इक्वल टू डाल के यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। मैं सिंप्लीफिकेशन इसके लिए बता रही हूँ बिकॉज यू आर नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, तो आप क्या कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ऑफकोर्स कैलकुलेट तो आप अच्छी तरह से करोगे कैलकुलेटर यूज करके, नॉट एन इशू, बट स्टिल मैं इसका थोड़ा बता देती हूँ। ओके, सो दिस इज -6, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 जा 12 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 इज 13, 13 का क्यूब। नाउ 9 माइनस 12 इज -3 इंटू -6, तो ये बन गया 18 अपॉन 13 का क्यूब है 2197। ओके, तो हमें मिला लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t एट s इक्वल टू 2 इज 18 अपॉन 2197, but that is the value of this integral, ये तो हमने शुरू में बोला था। so that means the value of this integral is 18 upon 2197। okay, and that is the answer। सबको समझ में आया, सबको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया। ओके, ये वाले प्रॉब्लम में अगर आपने देखा वन इंटीग्रल मीन्स 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव लिया है, तो ये जो प्रॉब्लम था ये थोड़ा लेंदी था, तो लेंदी प्रॉब्लम है तो भी इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, करेक्ट ना,
इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के सॉल्व करेंगे, लेंदी है तो भी इशू नहीं है। बाकी आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि ये जो प्रॉब्लम के स्टेप्स है व्हाइल वी वर फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सब रिपीट हो रहा था। हमने जो पहले किया वही हमने दोबारा फिर से किया, ऐसे कोई नई चीज आज की नहीं। जो आज डेरिवेटिव निकाला सेम टाइप पहले भी हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, ऐसा कुछ नया आज किया नहीं। ओके, सो दैट इज द नाइस थिंग ओवर हियर। वंस यू प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, सिमिलर टाइप ही आएगा यहाँ पर। ओके, all right, let's move on to the next problem now. Now we are going to evaluate integral 0 to infinity e raised to t sin square t upon t dt. okay, तो ये जो हमने इंटीग्रल देखा 0 टू इंफिनिटी, क्वेश्चन में कहीं पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, हमें सिर्फ इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये लिमिट देखा 0 टू इंफिनिटी, तो कौन याद आया? लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन याद आया। अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है e रेज टू टी, तो पक्का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक और बात हमें ध्यान जो देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा जो फंक्शन यहाँ पर है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करने आना चाहिए। ओनली देन वी कैन यूज दिस मेथड। ओके, अपने सिलेबस में तो उसी तरह के प्रॉब्लम्स देंगे आपको, बट देन द अदर थिंग आई हैव बीन टेलिंग यू कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कब यूज कर सकते हैं, लिमिट्स कंपेयर किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होनी चाहिए, ये दो चीजें मैंने बताई। तीसरी चीज ये है कि जो बचता है फंक्शन स्टेप 1 में, आप जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होना चाहिए और हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लिमिट 0 टू इंफिनिटी तो कंपेयर हो गया, e रेस टू माइनस एस टी को e रेस टू टी के साथ कंपेयर किया, तो s का क्या वैल्यू मिला? 1, करेक्ट। e रेस टू माइनस एस टी को e रेस टू टी के साथ कंपेयर किया, s का वैल्यू 1 मिला, करेक्ट है? गुड, s का वैल्यू -1 है। माइनस t का कोएफिशिएंट यहाँ पे -s है, t का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो s का वैल्यू यहाँ पर कहाँ गया मेरा? ओह सॉरी, आई हैव नॉट मेंशन दैट ओवर हियर। ओके, तो s का वैल्यू हमारा -1 है। ओके, और f ऑफ t क्या है? f ऑफ t इज साइन स्क्वायर t अपॉन t, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा जो हमारा फंक्शन है दैट इज आवर f ऑफ t, तो साइन स्क्वायर t अपॉन t। ओके, मतलब ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t एट, एंड देन वी पुट s इक्वल टू -1। ओके, अच्छा, अभी मुझे एक छोटा सा डाउट है जो मैं पूछूंगी आपको। हमने देखा था ये चैप्टर में कि इंटीग्रल के अंदर अगर फंक्शन है तो हम वहां पे वेरिएबल u यूज करते हैं, t नहीं, लेकिन यहां पर हमने t यूज किया है, ऐसे कैसे? इज दैट राइट? मेरा डाउट समझ में आया ना सबको? इंटीग्रल के अंदर याद है हम f ऑफ u, राजू रस्तोगी हाउस डिस्कस किया था, f ऑफ u होता है, t ने यूज करते हैं। लेकिन ये देखो इंटीग्रल है और उसके अंदर फंक्शन है और हमने t यूज किया है, तो यहाँ पर t क्यों यूज किया है, u क्यों नहीं यूज किया? एनीवन कैन टेल मी? एक्सेलेंट, दैट वाज फॉर लिमिट 0 टू t। देखो बहुत सारी फर्क है इसमें, एंड द फर्स्ट लिमिट्स आर डिफरेंट। एक्सेलेंट, वेरी करेक्ट आंसर। सबसे पहला जो आपने पकड़ा है वो है लिमिट, वो था लिमिट 0 टू t, यहां पर है लिमिट 0 टू इंफिनिटी। दूसरी चीज क्या है, वहां पर क्वेश्चन था फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर वो इंटीग्रल था, करेक्ट? यू हैड टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्सीलेंट अभिनव, लैप्लास इज एब्सेंट ही हैज मेंशन, तो वहां पर क्वेश्चन ही था आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का फाइंड आउट करना है उसमें इंटीग्रल था, और उस इंटीग्रल का लिमिट था 0 टू t। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटीग्रल इवेलुएट करना है, लैप्लास तो है ही नहीं। ओके, सो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, करेक्ट ना? तो कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ओके, so this is what we have to find. So let's begin with
फाइंडिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। यहाँ पर अपॉन टी देखा तो कौन याद आया? डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, तो मतलब साइन स्क्वायर टी जो है ये अपना बेसिक फंक्शन है, ये इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म से हमें स्टार्ट करना है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो अपने पास फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर टी इज 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, तो हमने वो फॉर्मूला डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो अपॉन 2 है कॉमन डिनोमिनेटर, दिस कम्स आउट यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर दिस विल कम आउट एज हाफ, और ये अंदर जो सब्ट्रैक्शन है इसको भी सेपरेट कर दिया है एक साथ हमने, तो वी गेट हाफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमें पता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t हमें पता है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट। दिस गिव्स अस हाफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is 1 by s minus Laplace transform of cos 2t is s upon s square plus 2 square which is 4। ओके, तो ये हमने डाल दिया, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन बाय टी अपॉन टी। ओके, तो अब हमें अपॉन टी डिवीजन, यहाँ डिवाइड हुआ टी डोमेन में, अपॉन टी से डिवाइड हुआ मतलब, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड गेट्स इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू s एंड द लिमिट्स वुड बी फ्रॉम s टू इंफिनिटी। सो ये हाफ तो यहाँ बाहर लिख दिया। किसी का बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है शायद, या थैंक यू। सो दिस वुड बी हाफ, और ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू s फ्रॉम s to infinity, तो we get integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 4। ओके, अब ये इंटीग्रल तो हमें करना आता है, isn't it? ये पहला इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ 1 upon s क्या है? log s। ये वाला इंटीग्रल s upon s square plus 4 ये भी हमें आता है, इसका वैल्यू क्या है? हाफ log of s square plus 4, करेक्ट? ओके, तो ये दोनों हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हाफ यहाँ पर ऐसे रह गया, इसका इंटीग्रल आ गया log s माइनस इसका हमने देखा था फॉर्मूला, तो दिस इज हाफ ऑफ log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस हैज टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम s टू इंफिनिटी। देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, ये इंटीग्रल हमने कब किया था और अभी भी हमें याद है, इजंट इट? सो इट इज वेरी इजी। ऑल राइट, तो अभी हमें पता है कि एक लिमिट इंफिनिटी है, तो इसको ऐसे तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इस लॉग को कंबाइन करना है। किसी का तो माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, कैन यू प्लीज म्यूट इट? या ओके, तो इसको कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पर हाफ है तो हम यहाँ पर भी हाफ लाएंगे। तो कैसे लाया? ये देखो, ये हाफ बाहर का वैसा रहा, यहाँ पर हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ऐसे ही अपने मर्जी के हिसाब से तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना उसको, अदरवाइज ये इक्वल टू नहीं रहेगा फिर। तो यहाँ हाफ इंटू 2 किया log s माइनस दिस हाफ into log of s square plus 4 remains as it is s to infinity। अब इसमें हम हाफ को कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा 1/4, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो बनेगा log of s square minus log of s square plus 4 which gives us log of s square upon s square plus 4। ओके, अगर हम इतना डायरेक्ट करना कंफर्टेबल नहीं है तो आप 1/1 भी कर सकते हैं, बट आई फील राइट नाउ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दिस मच। ओके, तो ये बन गया 1/4 log of s square upon s square plus 4 to be evaluated from s to infinity। ओके, अब ये वाले फंक्शन में अगर हमने इंफिनिटी डाला तो क्या मिलेगा? ये भी हमने देखा था ना, log of s square plus s square upon s square plus 4 में अगर हमने इंफिनिटी डाला, वेरी गुड, तो ये 0 बनेगा। सो वी गेट दिस इज 1/4, 0 माइनस s के जगह पे s डाला तो सेम फंक्शन आया। आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर रिमेम्बरिंग दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एक्सेलेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये माइनस को अंदर लेना है, ये माइनस अंदर आएगा तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। सो वी गेट 1/4 log of s square plus 4 upon s square। ये क्या हुआ, ये जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t का आंसर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। s का वैल्यू क्या था, -1, तो इसमें अगर हमने s के जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट किया तो वी गेट 1/4 log of -1 द होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन -1 द होल स्क्वायर।
ये -1 द होल स्क्वायर 1 है, +4 इज 5 अपॉन -1 द होल स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये हमें मिलता है 1/4 log 5. So we got Laplace transform of sin square t upon t at s equal to -1 is 1/4 log 5. But this is nothing but the given integral. That means the value of the integral is 1/4 log 5. आसान था? -1 अमोल सिंह, -1 माइनस ओके, ये -1 किस क्वेश्चन का आंसर है अमोल? हाँ, एस का वैल्यू, करेक्ट करेक्ट, ओके फाइन. तो आसान था ये? कितना आसान था? कितना आसान है? बहुत. ओके ग्रेट, लवली. अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, वेरी इजी ना? ओके वंडरफुल. ओके, एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये एक्चुअली थोड़ा ये है, बट देन लेट अस डू दिस. इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है, देखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल. ओके, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें दो दो इंटीग्रल दिखता है. ओके, ये जो बाहर वाला इंटीग्रल है, कहाँ गया? हाँ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसको हमें इवैल्यूएट करना है. और ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रैंड फंक्शन के अंदर है. ओके, तो राइट नाउ हम जब देखेंगे तो ये बाहर वाले इंटीग्रल को देखते हैं, इसको भूल जाओ. ओके, तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूज करके इस रियल इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो ये कंपेयर किया हमने इसको लैप्लस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ. तो जब हम कंपेयर करेंगे, ये वाले लिमिट्स तो कंपेयर हो गए, ये बाहर के इंटीग्रल का लिमिट्स बाहर के इंटीग्रल के लिमिट्स के साथ ही कंपेयर करना है. ओके, नेक्स्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिला s इक्वल टू 2. अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भूल जाओ, तो यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर क्या बचा? ये इंटीग्रल 0 टू t e रेज टू माइनस यू साइन यू अपॉन यू डी यू, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को भूल गए तो एफ ऑफ टी मिला, तो इनको कंपेयर किया तो मिला एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज टू माइनस यू साइन यू अपॉन यू डी यू. ओके, तो इस प्रॉब्लम में s का वैल्यू 2 है और अपना जो फंक्शन एफ ऑफ टी है दैट इज इंटीग्रल 0 टू टी ई रेज टू माइनस यू साइन यू अपॉन यू डी यू. ओके, यहाँ पर कैसे कंफ्यूजन है, देखो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको कंपेयर करना है या इसके साथ, या इसको कंपेयर करना है, दो इंटीग्रल है, किसका लिमिट्स कंसीडर करना है, ये सारे कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है. इसके लिए ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, लेफ्ट टू राइट हमें अप्रोच करना है. ओके, तो ये पता चल गया, तो हमें मिलता है कि ये जो गिवन इंटीग्रल है क्वेश्चन में, this can be obtained by first finding the Laplace transform of this function f of t, and in that we put s equal to 2. ओके, तो ये स्टेप हमें क्लियर हो गया. तो चलो फर्स्ट स्टेप ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं. तो वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t e raised to minus u sin u upon u with respect to u. अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो ये इंटीग्रल 0 टू t को देखा तो प्रॉपर्टी याद आया, e रेज टू माइनस यू को देख के भी प्रॉपर्टी याद आया, अपॉन यू को देख के भी प्रॉपर्टी याद आया, बचा कौन? साइन यू. साइन यू को देख के कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आता है, इट इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन. ओके, तो वी बिगिन विथ फाइंडिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन यू या साइन टी? साइन टी, बिकॉज दिस इज नाउ आउटसाइड द इंटीग्रल. यस, वेरी गुड. तो हम लोग बिगिन करते हैं साइन टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म से. सो इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, नेक्स्ट अभी हमारे पास दो चॉइसेस है, अपॉन टी कर सकते हैं या इंटू ई रेज टू माइनस टी कर सकते हैं. क्या करना है? दोनों भी सही रहेगा, बट आसान कौन सा रहेगा? अपॉन टी. एक्सेलेंट. तो नेक्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी. सी, एक्सेलेंट, यू ऑल बिकम एक्सपर्ट्स नाउ एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. गुड. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी होगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस, एंड लिमिट होंगे यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी.
अब ये जो इंटीग्रल है, हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी के वक्त 3 इंटीग्रल डिस्कस किया था, उसमें ये टाइप 1 है, ओके। तो दिस इज लाइक 1 अपॉन a square plus a square where a is 1. So this will be 1 upon a, which is 1 upon 1 into tan inverse of s upon a. A is 1, so s upon 1 is s. So tan inverse of s to be evaluated from s to infinity. तो चलो अभी इसमें लिमिट्स डालते हैं। पहला लिमिट डाला इन्फिनिटी तो मिला tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, माइनस सेकेंड लिमिट डाला तो फिर से tan इनवर्स ऑफ s मिला। अब हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज पाई बाय 2, तो दिस गिव्स अस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s, ओके। तो अब हमें मिला लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s इज cot इनवर्स ऑफ s। तो ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ओके। तो अब देखो हमने sin t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया, sin t अपॉन t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम e रेज टू माइनस t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस t sin t अपॉन t विल बी, राइट हैंड साइड में s के जगह पे क्या आएगा, s माइनस 1 आएगा या s प्लस 1 आएगा, s plus 1, oh no confusion at all. So this will be cot inverse of s plus 1, okay. तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटीग्रल, इतना लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो गया, अब ये इंटीग्रल को पिक्चर में लाना है। द मोमेंट इंटीग्रल 0 टू t पिक्चर में आ गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म के अंदर, ये जो है ये सब t के जगह पे u हो जाता है। सो वी गेट e रेज टू Laplace transform of integral 0 to t e raised to minus u sin u upon u du, ओके। और ये इंटीग्रल आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में अपॉन s आता है, so we get this is equal to cot inverse of s plus 1 upon s. So we found out the Laplace transform of this function, ये अपना f of t था, याद है ना। तो अपना स्टेप 1 हो गया है, we have found out the Laplace transform of f of t. अब हमें क्या करना है, s का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, s is equal to 2 here. तो at s equal to 2, this Laplace transform becomes cot inverse of 2 plus 1 upon 2. Now 2 plus 1 is 3, so this gives us cot inverse of 3 upon 3, okay. तो अब हमें क्या मिला, at s equal to 2, Laplace transform of this function is cot inverse 3 upon 2, but यही तो अपना इंटीग्रल का वैल्यू है, so the value of the integral is cot inverse 3 upon 2 and that is the answer. अभी शुरू करते वक्त ये क्वेश्चन अगर ये इंटीग्रल को देखो तो कितना खतरनाक लगता है, देखो इट लुक्स सो डेंजरस, बट देन व्हेन यू सॉल्व्ड इट वी फाउंड इट वेरी इजी, इजंट इट। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ये बहुत आसान रहेगा। इजी लगा ना, लगा इजी, ओके ओके, अच्छा। So these are all the types of problems. अभी it's already 10:48, but with your permission मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम लेती हूँ, छोटा सा, तो ये टाइप हमारा हो जाएगा, ओके ओके। Suppose this is the question, integral 0 to infinity sin 2t cos 3t dt। ये sin 2t cos 3t हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, आज हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना वो क्वेश्चन में देखा था, ओके। फर्क क्या है यहाँ पर पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, अगर किसी को याद है तो, दिखाई दे रहा है तो, फर्क क्या है, ओके अगर क्वेश्चन नंबर 1 याद नहीं है तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, हाँ खुशी हैज ऑब्जर्व्ड इट, अरे सबने देखा है, क्या बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एब्सेंट, ओके। नाउ दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो कैन वी यूज लैप्लस ट्रांसफॉर्म, यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करके इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? Amit has already given the answer before I have asked the question. Excellency, all of you have understood. I intended it to be a big surprise, but it was not a surprise. All of you got it very well. Okay. तो exponential function नहीं है तो भी no tension. इसका सिर्फ मतलब है कि it is e raised to 0t. Very good. तो ये completion के लिए solve कर देते हैं। तो फिर भी हम proceed ahead करेंगे comparing with definition of Laplace transform.
तो यहाँ पे इंटीग्रल का लिमिट तो कंपेयर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, मतलब s एक्चुअली 0 है, और जो बचा है दैट इज आवर फंक्शन f of t. So we have to solve this problem with s equal to 0 and f of t as sin 2t cos 3t. Okay, तो हमें कंपेयर किया तो दिस इंटीग्रल विच कैन बी विजुअलाइज्ड एज दिस इंटीग्रल, हमारे दिमाग में ये वाला इंटीग्रल दिखता है, करेक्ट, तभी तो हमें s 0 मिलता है. सो दिस इंटीग्रल इज एक्चुअली Laplace transform of this function f of t sin 2t cos 3t at s equal to 0. ओके, मतलब ये इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए पहले फाइंड आउट करो ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर उसमें पुट करो s इक्वल टू 0. अब ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, तो आई कैन गो अ लिटिल बिट फास्ट हियर. सो टू फाइंड दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी यूज बेसिक फॉर्मूला. तो उसके लिए यहाँ पर 2 चाहिए. ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. तो वो 2 हमने एडजस्ट कर लिया, टर्म्स को भी एडजस्ट कर लिया. सो वी गेट हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 into cos 3t into sin 2t. Now we use this formula. So this is half into Laplace transform of sin of a plus b minus sin of a minus b. This on simplifying further gave us half Laplace transform of 5t minus sin of t. अब यहाँ पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो दैट गेव अस हाफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t. इन दोनों के लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो दिस गिव्स अस हाफ into 5 upon s square plus 5 square which is 25 minus Laplace transform of sin t is 1 upon s square plus 1 square which is 1. ओके, तो ये Laplace transform of sin 2t cos 3t तो हमने फाइंड कर लिया. अब हम इसमें पुट करेंगे s equal to 0. तो at s equal to 0 Laplace transform of sin 2t into cos 3t will be half into 5 upon 0 square plus 25 minus 1 upon 0 square plus 1. This gives us 1 by 2, 5 upon 25 minus 1. ये 5 upon 25 is actually 1 upon 5 minus 1. 1 by 5 minus 1 अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया you get 1 minus 5 upon 5 that is minus 4 upon 5. yes, अरे क्या बात है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है and we get the answer as minus 2 upon 5. ओके, तो ये हमें मिला Laplace transform of sin 2t cos 3t at s equal to 0 और इसका आंसर मिला minus 2 by 5. तो ये जो गिवन इंटीग्रल है इसका आंसर है minus 2 by 5. Okay, so these are all the types of problems which we have in this application. I hope you have got the idea, we have got the concept. Okay, तो ये आपको मैंने 3 प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दिया है. I'll be uploading this document on Google Classroom. Okay, now with this we complete the first module application के साथ, that is Laplace transform. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे. ओके, और आज आफ्टरनून में आपको क्विज और क्वेरीज का फॉर्म अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज आंसर दोस. ओके, sorry I have already taken up so much of your time of the break, so you still have 5 minutes barely to rest before the next lecture. Okay, any doubt? No doubts? Okay, that's wonderful. ओके, थैंक यू डियर्स. अभी हमने आज तक जो किया है ये रहेगा हमारे फर्स्ट टेस्ट में जो होगा 16th को. ओके, दैट इज संडे का टेस्ट के लिए अभी तक जितना किया है ये रहेगा. ओके, ओके डियर्स, टेक केयर, बाय. संडे का टाइमिंग 10 o'clock इज ओके विथ यू ऑल. 10 to 11, 10 to 11 okay with all of you all? Okay, okay, so as of now we keep the timing as Sunday को 10 to 11. Okay, some people are still having a problem. Okay, मैं आज एक टाइमिंग के लिए फॉर्म भेजती हूँ, तो उसमें आप लोग अपना टाइमिंग डाल देना, फिर एक सबको कंफर्टेबल कैसा एक टाइमिंग है, we will come up with that. Okay, I did not circulate that form on that date. Today I will पक्का circulate it. Okay, okay dears, thank you. Have a nice day. Yeah, bye.